उन्होंने कहा कि डांस की परिभाषा बदल देने वाला है पूरे देश में। इसके अलावा मुझे लगता है कि इस शोज के ऐसे कई डांस फॉर्म्स आने वाले हैं जो पहले देखे नहीं गए इस देश में। और जब हम ऑडिशंस कर रहे थे तो हमने देखा 2-3 जो डांस फॉर्म्स या डांस ग्रुप्स आए वो पहले न भूतो न भविष्य यहाँ देखने को मिलेंगे। एंड आई थिंक दे विल बी वेरी इनोवेटिव, दे विल बी टेकन अप बाय द क्राउड। आई थिंक ऑल द डांस फॉर्म्स that are going to be showcased are not going to be only technical, they are also going to be entertaining, easy to do dance formats and all. और मुझे लगता है कि they will become a rage in the country. That's all I want to say about the show. I think we should just play a short EB to give you an idea of how the show looks. Okay, this spot is extremely blinding. Besides, it's the first time I'm actually standing here. My Hindi isn't great. So people try and match my Hindi with Mallu as a converse English. Okay, thank you. Would like to thank Star Plus for this opportunity to make a, as rightly described, जो परिभाषा बदलने वाला एक शो बनाने के लिए. Thanks for trusting us with the concept. Thanking Nachiket, Ashish Korvalkar, and the rest of the Star Plus team. And as you know that this is a joint BBC Worldwide and Tropoloid media production. And I'm not the only one who was working on the show. I don't really work so hard. Actually, it is the whole team that really works hard, goes through sleepless nights, dealing with people, a lot of stuff that they do, and I would like to congratulate them for this, for the entire team of India's Dance Superstar. As for the show is concerned, you already know the concept. Like one of the most heartwarming things that you see when you actually step out for auditions is the kind of response, the kind of talent that you see, and suddenly you feel that okay, your country is amazing because it has got this bottomless almost looks like unceasing, almost looks like never-ending pool of talent that the country has, and that's what actually warms your heart every time you actually step across auditions in various cities of the country. We had actually, in my experience, this show had actually garnered or invited one of the probably, I think one of the biggest or the biggest kind of response. तो है जाना तोहफा क्या लेके जाए ये बताना खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे तो हंसे क्योंकि दुनिया को है साना है मेरे दिल तू आए जा आए आओ आए मेरे दिल तू आए जा
Geeta Kapoor, Ashley Lobo. I request the judges to kindly say a few words. We have the mics here. Ritesh, can we start with you, please? एक बार रितेश के लिए जोरदार तालियां हो जाए यार, क्या पोस्टर फाड़ के निकला हीरो। First of all, ज़्यादा ही बुलंद आवाज लग रही है आज मुझे। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आई एम इन ग्रेट डांसिंग कंपनी। मैं स्टार प्लस और इंडिया डांसिंग सुपरस्टार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। 10 साल पहले मैंने फिल्मों में डेब्यू किया था। आज ये मंच मिला है कि मैं टीवी में डेब्यू कर रहा हूँ। एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, अच्छा लग रहा है क्योंकि जो भी शो पे आता है कहता है गीता माँ गीता माँ गीता माँ। तो हाँ, कितने लोग आके गीता माँ गीता माँ गीता माँ, तो माँ के साथ खड़ा रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इट्स वंडरफुल कि गीता जिनके साथ मैंने बतौर एक्टर और ये कोरियोग्राफर में हम लोगों ने इकट्ठा काम किया है और आज को जजेस के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। सो इट्स माय प्लेजर कि मैं इनके साथ बैठा हूँ। साथ ही एशली जो बड़े ही कड़क है और धीरे धीरे आगे आगे बताएंगे हमने इनका क्या नाम रखा है। पर once again, thank you so much for being here today and giving such warm reception. Thank you so much. Thank you, Ritesh. Geeta ji. Geeta Ma, can we request you to say something, please? बहुत कम लोगों को I think मौका मिलता है कि शुरुआत यहाँ से करें। I started as an assistant. I've also worked alongside being an assistant with him. और आज अगर मुझे मौका मिला है इनके साथ बैठने का, तो I think this is my big honor, not his. I'm humbled. 1, 2, shut up. खुशी मुझे मिलने का भी Star Plus, thank you very much. कल क्या लाइट दे रहे हैं और मुझे शामिल करने के लिए इंडिया डांसिंग सुपरस्टार अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए, बिकॉज आज इस शो पर आके मुझे मौका मिला है कि मैं हर उम्र के लोगों को देखूं नाचते हुए। कुछ मेरी तरह जिनका डांसिंग कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। आई गेट टू सी देम परफॉर्मिंग, आई गेट टू सी यंग किड्स परफॉर्मिंग। बच्चे बूढ़े हो जवान, whatever they are, whoever they are, they are welcome on this stage। और वो बहुत कम लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है। So thank you Star Plus, thank you Bimal, thank you very very much for this opportunity। Thank you Ashish, I shall always remember this। Thank you and thank you Ashley, thank you sir। अगली बार आएंगे लोग तो मैं कहूँगी इनको रितेश पापा बोलना, मुझे गीता माँ बोलने से पहले, ठीक है? Thank you so much for being so genuine, Ashley. Good afternoon, good evening, welcome. It's a pleasure and an honor to be here judging this with Ritesh and Geeta ji. नाम कभी याद नहीं रहता, याद कर लीजिए। But तीन चीज, I think after a long time I've decided कि मैं जज करूँगा टीवी पे, and it was clearly because of 3 reasons। I think एक ही it's the right platform। इतने अलग अलग style of dance, people, ages, abilities है इस platform पे। It's the perfect dance competition for me। एक तो it is Star, which is such a premium channel, and for me personally it's the right time I think for me। I feel right about this in every way। It is a great pleasure to have Ritesh sir and Geeta to be judging with। I am the new kid on the block। हिंदी में रूपांतर इसके बाद। मैं रूपांतर का नया हूँ यहाँ मतलब से, इस प्लेटफॉर्म पे मैं नया हूँ और गीता और रितेश सर मेरा बहुत मदद कर रहा है एंड बहुत सपोर्ट दे रहा है। Thank you। Thank you, thank you। Thank you Ashley, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनके जज करने के लिए। तेरे को ठीक है बेटा, ओह ठीक है।
एक बार इन डांसिंग सुपरस्टार्स के लिए जोरदार तालियां ताकि ये लोग जाके पीछे अपने आप पानी वानी पी सके. I'd like to now call on stage the hosts of our show, Mohit and Aishwarya, to kindly come on the stage, and of course Mr. Nachiket Manvedya. Sir, can we please have you on the stage for a media round of question and answers? Alright, the forum is now open for any questions that the media might have to ask our entire team of India's Dancing Superstar, judges, hosts, and of course Mr. Nachiket Manvedya is here with us. Koi sawal? Anybody? Hello. Yeah, Ritesh. This is Vijay. Yeah. Vijay. Yeah. Oh, Vijay. मेरा सवाल आपसे है रितेश. बहुत सारे स्टार्स टेलीविजन में आ रहे हैं. हमारे बच्चन साहब तो बहुत पहले से आ रहे हैं. आप टेलीविजन में आ रहे हैं, तो क्या नया करेंगे? वैसे मैं जानता हूँ कि जजेस के लिए कुछ ज्यादा होता नहीं है, सारा क्रेडिट गीता जी ले जाते हैं, लेकिन अब आपके सामने एक चुनौती है. आप जजेस का ड्यूटी तो निभाएंगे, इसके साथ साथ क्या करेंगे ऐसा कि आप सबके चहेते बन जाएं और इनको पीछे छोड़ दें? मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं गीता जी को पीछे छोड़ूं. मैं जो कुछ भी करूंगा, गीता जी ने जो ऊंचाई इससे पहले हासिल की है उसको और ऊंचा करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा. Yes, sir. Ritesh, one question. Why did you decide to come in the small screen, leaving the big screen? आपने टेलीविजन में आने का क्यों सोचा है? अचानक से क्यों सोचा है? सबसे पहले मुझे लगता है कि बहुत गलत चीज़ है कि हम इसको स्मॉल स्क्रीन कह रहे हैं. मुझे लगता है कि आज दुनिया भर में सबसे बड़ी अगर कोई स्क्रीन है तो वो टेलीविज़न की स्क्रीन है. हम लोग हमेशा कहते हैं कि बड़ा पर्दा यानी फिल्मों का पर्दा साइज के हिसाब से बात कर रहे हैं, पर अगर रीच के हिसाब से बात करें तो टीवी स्क्रीन से बड़ा कोई पर्दा है ही नहीं. मेरा सवाल रितेश जी से है कि आप भी बहुत अच्छे डांसर हैं, तो आपको डांस फॉर्म्स में वेस्टर्न ज्यादा पसंद है कि लाइक टपोरी डांस और देसी डांस? सबसे पहले मुझे इस बात की बेहद खुशी हो रही है कि इस देश में एक महिला है जो सोचती है कि मैं बहुत अच्छा नाचता हूँ. इसी के साथ मैडम थैंक यू. और मैं जो भी नाचता हूँ दिल से नाचता हूँ. कभी वो वेस्टर्न लगता है, कभी टपोरी लगता है. उसका मैं अभी तक बाइफर्केशन नहीं कर पाया. तो जब कभी भी हो जाएगा मैं बता दूंगा, लेकिन मैं नाचता दिल से हूँ. तो आप दिल से नाचने वालों को सुपरस्टार बनाएंगे कि जो जिनका नाच हमारे दिल को छुएगा, जो कहते हैं ना कि दिल जीतो, जैसे इस शो का टैगलाइन है दिल जीतो देश तुम्हारा, और मैं कहूंगा दिल जीतो देशमुख तुम्हारा. मोहित जी से फर्स्ट टाइम एंकरिंग कर रहे हैं, तो उनको कैसा लग रहा है और क्या मतलब वो कुछ नया पेश करेंगे? काफी कोजी लग रहे हैं आजकल. हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे मौका मिला एंकरिंग करने का. सो इट्स अ नेक्स्ट स्टेप. सो आई एम होपिंग कि आप लोगों को पसंद आए और मैं आप लोगों का दिल जीत पाऊँ, जैसे सर ने कहा. मे बी एंकरिंग सुपरस्टार बन के दिखाऊं. Absolutely, why not? I'll be supporting and cheering for you. Thank you, sir. Absolutely. Yeah. My question is to everybody. I think इस शो का नाम शायद होना चाहिए था India's Got Talent Dance Superstar, because you have got a variety of talent, different age groups, everything. The question is कि how will you judge? In the sense कि मतलब आपका जो judging जो होगा solo, duet, groups, तो आप लोग जो eliminate करेंगे या judging करेंगे वो किस तरीके से होगा, और आप winners जो चुनेंगे different categories में होंगे या कैसे होगा? सर आई थिंक वेरी स्मार्टली सो जब हम पहली बार इस शो पर आए थे, हमें ये कहा गया था कि इनको इफ दे रियली इमोशनली गेट यू, आई थिंक कहीं ना कहीं हमने किसी का दिल छुआ था जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं. कहीं ना कहीं ये बच्चे हमारे दिल को छू गए हैं या बड़े हैं, इसलिए वो शो पर हैं. और कहीं ना कहीं द पीपल ऑल्सो विल फील द सेम वे अबाउट देम, एंड आई थिंक दैट विल मेक इट ईजियर टू जज देम. ऑफ कोर्स हम देखेंगे कि गेज तो करना पड़ेगा, कोई एक अच्छा होगा, एक बुरा होगा, कहीं ना कहीं फ्लॉज आएंगे. सो आई थिंक इट विल बी अ मोमेंट
subtle thing at that point. वहाँ पे जब जो होगा, we'll judge it at that point. We haven't gotten to that stage yet. We'll cross the bridge once we get Green comes duet versus group. Kind of judging it. I mean that's the reason. Sir, it's the talent at the end of the day. It's all about dancing. And there are times जब लोग सोलो में बहुत कुछ कर जाते हैं और इतना 20 के ग्रुप में आके फिर भी कुछ नहीं कर जाते हैं. So it all depends at that point how it's going to happen. Hello, this question is for Mr. Nachiket. I just want to know whether this concept is related to Boogie Woogie, the show which used to be telecast on Sony, because there is no certain group, there is no certain age limit. So is it somewhere related to that? No, I don't think this concept is related to anything previously. Simply for the fact that this is really a democratic show, in the sense that there are auditions here where people will come and show their talent. And that differentiates it from every other show that is there. There's no age bar, there is no restriction on what needs to be done. Also, there is a proper competition. Somebody is going to win in the end, at the end of the season. So I think this is a unique concept. पहली बार हो रहा है इंडिया में. और जैसे मैंने पहले भी कहा कि this is probably the only dance show to launch in the IPL. And so it's unique on all fronts. I hope you guys watch it. My name is Prabhat. Geeta. Hi, here. How difficult it was, like judging in dance, India dance, and judging your theater? Ma'am, उसका format अलग था. That was a different format altogether. It's more difficult here because you're seeing people of all ages and groups. There it's very easy because the balance is maintained. But I think India's Dancing Superstar has more potential to scare you in terms of passing a judgment because you're seeing stuff that is unbelievable. I think more than anything else, what is more scary are these two men standing next to me. So this will be the more difficult part than the other show. Blue हटा दो यार. Just joking. बैंड बज गई पूरी मैम की. इससे पहले का अच्छा था. वाइट है. This side is which side? Yes, sir. My question to you is that this kind of temporary phase of fame and glamour, how does it affect the children's career? Blue light हटा दो. Plain light How does it affect what? Children's career. If a participant is participating in this kind of a show, that is a temporary phase of fame and glamour. But after that, what is the career option for him? What's a career option for a child? Yeah. Sir, I don't know. I will give it to sir. One of the things that this kind of show opens is. मैं कहना चाहता हूँ कि मैं career guidance में बहुत बुरा हूँ. तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि स्टार प्लस के जरिए अगर आपके पास कोई भी टैलेंट हो वो आप दिखा सकते हो. तो we are not in a position to guide careers right now, but we are definitely in a position to open up avenues. So if you should have seen lots of movies around these days which are around this concept. Even if you're not good at one thing but you're good at another, it's good to emphasize on what you're good at. और उसी को आगे बढ़ावा देना चाहिए. We also believe that. And if there are children who got dancing talent, who got singing talent, who got acting talent, please encourage them to. आनंद लाइट का बोल रहा है. Of course, within the limits of their ब्लू लाइट पूरा ब्लू दिख रहा है. बोलो ब्लू कम कर दो यार. उनको ब्लू बंद कर दो. हो गया आनंद अभी बोलेगा. इमोशनल होने का मौका ही नहीं देते मैम ये दोनों. इनकी हिंदी मौका नहीं देती और इनके वॉइस क्रैक्स मौका नहीं देते. He is quicker than me. तो आंसू टपकने से पहले इन्होंने ऑलरेडी एक जोक क्रैक कर लिया होता है और वो मोमेंट वहीं पे खत्म हो जाता है. तो होपफुली मेरे आंसू बच जाएंगे और जो रोने की वजह से मेरी आईसाइट कम हो गई है वो और अच्छी हो जाएगी थैंक्स टू दीस टू बॉयज. I think the timing of the show is what we are launching in the middle of IPL. The IPL just started. And sorry, I didn't hear the leadership part. I mean the launch, the timing of the launch of the show, is right in the middle of IPL. Already sort of, Star Plus is one of the sponsors there on the ground. And you are promoting your own character, your own show. Means that आनंद बैठ गया उसको बोला बोलना. I mean it is a huge show. And already GCs have taken a hit वो जो ऊपर से जो in the first 2 weeks. So what is the reason for sort of launching this show? इससे पहले नहीं था. One of the things I just like to correct you that actually last week we are ahead of Sony Max. LED हटा दो ऊपर साइड से. I know that. We haven't taken that. What भी हटा दो यार. क्या दिख रहा है पूरा. Of course, we firmly believe that
We want to leverage the IPL as a platform to launch this show, and we don't think it's competition. इसलिए हमारी जो नई सोच का award जो है, हाँ वही इसके पहले अच्छी थी. So we don't believe that it is competition. We just believe that we can use that to create a situation where more and more audiences come and watch us on weekends. So we believe that this is one of the first innovative steps from Star Plus to schedule and launch a big show during IPL, leveraging whatever IPL has to give to the audience itself. And one of the examples is the fact that we have representatives of this show on the IPL matches giving their efforts. मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने कहा कि हमारा शो सबसे डेमोक्रेटिक है. इधर सर, दिस साइड लेफ्ट. हाँ, सॉरी. आपका शो सबसे डेमोक्रेटिक है, तो क्या आपकी जज के सिलेक्शन में भी कोई डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल क्राइटेरिया रहा है क्या? आपके जज के सिलेक्शन में कोई डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल क्राइटेरिया रहा है क्या? पॉलिटिकल तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक क्राइटेरिया. सर लकी ड्रॉ निकला था, लकी ड्रॉ. और वहां से टीम इंडिया निकली थी और हम तीनों थे लकी विनर्स. तो पहली बार है कि जजेस भी लकी विनर्स थे इस शो के. ऐसी बात नहीं है, हमें लगता है कि हमारे जजेस का जो कॉम्बिनेशन है वो शो के लिए बहुत ही उचित है. ये सीक्रेट बताने नहीं होते ऐसे. तो हमें लगता है कि ये बहुत ही एप्ट चॉइस है, क्योंकि हमें लगता है कि दो जो जजेस हैं वो डांस को बहुत अच्छी तरह से जज कर सकते हैं, और रितेश जी जो है वो जो एंटरटेनमेंट फैक्टर ला रहे हैं वो that's not comparable. So he's managing to get all the entertainment and evaluate it from that perspective. Since we want to make it not just purely technical, we don't have everybody who's technically a dancer. So that's the base. जी वही मैं तीनों जजेस से जानना चाह रहा था, आप लोग डांस में, किसी की भी डांस में किस तरीके से रितेश जी आप जज करेंगे, गीता जी आप देखेंगे, एचपी जी आप क्या देखेंगे, मतलब क्या रितेश जी को इम्प्रेस करने के लिए क्या करना होगा डांसर्स को, गीता जी को करना होगा? आई थिंक मेरे पर्सपेक्टिव से मैं एंटरटेनमेंट फैक्टर देख रहा हूँ कि जब कभी भी आप कोई परफॉर्मेंस देते हो तो आप यही देखते हो कि क्या वो एक्ट एज एन एक्ट एंटरटेनिंग है, क्या क्रिएटिव इनफ है. और ऑब्वियसली डांसिंग माध्यम है तो उसके लिए हमारे जजेस यहाँ पर बैठे. जैसे हम लोग फिल्में देखते हैं और फिल्मों में जब कोई डांस अच्छा लगता है, सीन अच्छा लगता है, एंटरटेन लगता है, हम लोग तालियां बजाते हैं. हम लोग घर पे बैठकर भी जब टीवी पर कोई परफॉर्मेंस देखते हैं तो कहते हैं क्या अच्छा नाचा है. इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग जो घर पे बैठे हैं उन्हें कोरियोग्राफी पता है या डांसिंग की निटिग्रिटीज पता है, परंतु एक कनेक्शन होता है, और कोई अगर परफॉर्मेंस दिल को छूता है तो आप बोलते हैं वाह क्या परफॉर्मेंस है. तो आई थिंक वही एक पर्सपेक्टिव लेकर मैं वहाँ पर बैठा हूँ. और पिछले 10 सालों में जो मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं इतने सारे कोरियोग्राफर्स के साथ मैंने काम किया है, थोड़ा कुछ सीखा है. मैं नहीं कहता कि मुझे बहुत कुछ आता है, पर थोड़ी कुछ भी समझ उसमें है. पर जब भी हम सीन करते हैं तो सीन करते वक्त ये पता होता है कि क्या ये सीन एंटरटेनिंग इनफ है, क्या ये एंटरटेन कराएगा, हंसाएगा, रुलाएगा या जो भी है. तो उसकी एक समझ पिछले 10 सालों में जो थोड़ी बहुत मुझे आई, वो सब लेकर वहाँ पर बैठा हूँ. आई थिंक थ्रू माई पर्सपेक्टिव, अपार्ट फ्रॉम लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई हैव, आई विल आल्सो रिप्रेजेंट द पर्सन वाचिंग टेलीविजन एट होम ऑन द जज पैनल. रितेश आपके राइट में व्हाट इज द डिफरेंस जो आपने बड़े स्क्रीन और छोटे स्क्रीन में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, मतलब एंटरटेनमेंट के हिसाब से, और उसके हिसाब से आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है बड़े स्क्रीन में और इस स्क्रीन में? इम्पैक्ट यही है कि एक टेक में इतना एंटरटेनमेंट मैंने जिंदगी में नहीं देखा. हम लोग तो रीटेक दे देकर हर शॉट को डिवाइड कर करके इवेंचुअली 1 साल बाद जब फिल्म बनती है तो पता चलता है कि यार ये फिल्म चली तो एंटरटेनिंग थी और नहीं चली तो वी फेल्ड. पर डांस शो में एक टाइम होता है 2-3 मिनट का जो आपका लिमिट होता है, उसी में एक टेक में आपको पता चलता है कि एक्ट एंटरटेनिंग है या नहीं है. और मुझे लगता है कि बहुत साहस लगता है. यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, 5 साल के बच्चे हैं या 65 ईयर ओल्ड, 74 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीजन जो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, दिल से परफॉर्म कर रहे हैं. आई थिंक मोर देन एंटरटेनमेंट यहाँ पर आपको इंस्पायरिंग स्टोरीज भी दिखाई देंगी कि लोग आकर किस वजह से यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं. और कुछ लोग तो जीतने के लिए भी परफॉर्म नहीं कर रहे, कुछ लोग इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत खुश है, क्योंकि उनके बहुत सारे सपने थे जो
वक्त पर पूरे नहीं हो सके। तो आज इंडिया डांसिंग सुपरस्टार एक ऐसा मंच है जो आप चाहे 60 के हो 70 के हो, आपको फिर से मौका मिलता है जो सपने आपने पीछे छोड़ दिए थे उसे आप आज यहाँ आकर पूरे कर सको। आई थिंक इट्स वंडरफुल। नितेश, आपके राइट पे स्पीकर के पास इज आलोक फ्रॉम OFM। मेरा सवाल आपसे है कि जिस पल आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मैं जज करूंगा टीवी से रिलेटेड, मैंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो घर से क्या रिएक्शन था? जिनेलिया मैम ने क्या बोला जब आपने ये काम करने का सोचा? मैम का क्या रिएक्शन था? मैम का क्या रिएक्शन था? कॉन्ट्रैक्ट जल्दी साइन करो, इतना सोच क्यों रहे हो? Alright, the last question for the evening. जैकी, मेरा क्वेश्चन आपसे है, हमने सुना है यू लर्न हिंदी फॉर दिस शो, आपका टीचर कौन है? अपना टीचर ये जो फिल्म सीरियल का राइटर है, he is coming and coaching me, वो कोच कर रहा है हिंदी में। जो सीरियल का राइटर है वो मुझे कोच कर रहा है आने से पहले आज। और हम लोग क्या कर रहे हैं बाजू में बैठ के? हम लोग क्या कर रहे हैं बाजू में बैठ के? साइड में रितेश और गीता जी जैसे मैं जो कुछ मैं बोल रहा हूँ मेरे को करेक्ट करते हैं, राइट करते हैं। जैसे ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत मजा। जैसे कि कोच अभी बताइए, एशली टाई को हिंदी में क्या कहते हैं? कंट लंगोट। But one thing is for sure, lot of entertainment, lot of dance. नितेश, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, तो जब आप छोटे थे तो कौन सा ऐसा पर्टिकुलर गाना था जिसपे आप अक्सर थिरका करते थे? मैं अभी भी छोटा ही हूँ। अभी भी किस गाने पे थिरकते हैं आप? कौन सा ऐसा गाना था जो? कोई पर्टिकुलर गाना मिथुन दा का या इंग्लिश या हिंदी जो आप जिक्र करना चाहें आज? कौन सा? मौसम है गाने का, सुनने का, बजाने का, रातों को निरातों में जगाने का, ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवानी का, समथिंग like that. Thank God that is singing competition. Thank you for addressing all the questions. Well, now you can take your group pictures. India's dancing superstar team is in front of you on the stage. We promise you not only dancing, lot of emotion. Thanks to our Geeta Ma. और मजा आ जाएगा. Can we have the team of India's dancing superstar on the stage, please? एक सवाल है कि किस तरीके के सुपरस्टार्स की तलाश है आप तीनों को अलग अलग तरीके से?
एक तो बिल्कुल दिल छूने वाला होना चाहिए, और 3 चीज़ है, आई थिंक डांस, क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट होना चाहिए उनके एक्ट में 100%। आप क्या देख रहे हैं? सर मैं इमोशनल वैल्यू देख रही हूँ कि इमोशनली कितना हाउ गुड एंड हाउ वेल डू दे कनेक्ट, क्योंकि कनेक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सो आई थिंक आई लुक एट दैट एस्पेक्ट ऑफ इट। सर व्हाट आर यू लुकिंग? नहीं, मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट और क्रिएटिविटी, ये दोनों चीज़ें किस तरह वो मिला पाते हैं, किस तरह इन दोनों चीज़ों का मिलन होता है। और ज़्यादातर जब भी आप कोई एक्ट देखो, आपके दिल को छुए और आप कहे कि इट वॉज अ माइंड ब्लोइंगली एंटरटेनिंग एक्ट, और ऑब्वियसली विद ग्रेट डांसिंग, तो काफ़ी कुछ मिक्सचर है एक्चुअली। जब नहीं, फिलहाल मैं 2 फिल्में कर रहा हूँ। एक तो मस्ती खत्म कर रहा हूँ, मस्ती पार्ट 2, और मेरी मराठी फिल्म है जो निशिकांत कामत के साथ मैंने शुरू की है। हफ्ते में 1 दिन होगा और फिर 5 दिन में मराठी फिल्म करूँगा। जब उस फिल्म के इंटरव्यूज होंगे तब मैं बताऊँगा। नहीं, कॉमेडी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत रोने वाला हूँ। मैं कॉमेडी को छोड़ के अभी ट्रेजेडी की ओर ढूंढने वाला हूँ, और जब भी कोई परफॉर्मेंस अच्छा लगे तो इनकी तरह शुरू हो जाऊँगा। हाँ जी। क्या डांस में काम किया है और आप किस तरह कितने शो को देखते हैं, आप इसको प्लेटफॉर्म क्यों नहीं किया इंटरव्यू के लिए? मैं तो एजुकेटर हूँ, मैं टीच करता हूँ, मैं कोरियोग्राफ करता हूँ फिल्म में और स्टेज के लिए। मैं सिर्फ टेक्निकल देखूंगा, मेनली टेक्निकल, डांस टेक्निकल, क्योंकि मैंने बाहर ऑस्ट्रेलिया में जाके इंटरनेशनल डांस स्टडी किया, तो मैं I'll be looking at the technicalities of the dance, let's say reach, connectivity, उनके फिजिकलिटी, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है फिजिकली, वो भी मैं ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ। गीता जी ने बोला था कि हिंदी आपकी काफी फेमस होने वाली है इस प्लेटफॉर्म पे, तो रितेश जी का क्या कुछ फेमस होने वाला है? रितेश जी खुद ही फेमस है, अब और क्या चीजें आप देखना चाहेंगे जो आप उनको फेमस करार देंगे? ही इज ऑलरेडी अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। इस शो की वजह से वो फेमस हो जाएंगे, ये कहना थोड़ा सा स्ट्रेंज और वियर्ड। स्ट्रेंज और वियर्ड मैडम मैं खुद ही हूँ। कोई पर्टिकुलर करने वाले, क्योंकि हर एक जज का एक तकिया कलाम, एक तकिया लेके आऊंगा और मैं कलम लेके इनके तकिए वाले। थैंक्स। कहा छोटे पर्दे पर कितनी एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट बहुत है, उससे ज़्यादा मैं नर्वस हूँ, क्योंकि यहाँ पर टेक नहीं मिलता, जो लगता है वो बोलना पड़ता है, मैं बोल भी देता हूँ। तो फिर ये शो हम लोगों की वजह से नहीं हो रहा है, ये शो हो रहा है यहाँ पर जो टैलेंट आएगा, जिस तरह परफॉर्म करेंगे और जो लोगों को पसंद आएगा या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़े शो का मैं एक छोटा सा हिस्सा, और मुझे एक्साइटेड अबाउट है। आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले भी आप काफी सारे सीजन जज कर चुके हैं GID के, तो इस सीजन में क्या अलग होगा और गीता माँ में हम क्या अलग देखेंगे? आप मुझ में कुछ अलग क्यों देखना चाहते हैं? जो अलग है वो शो पे है। शो पे अलग और खासियत इस शो की ये है कि आप कोई भी एज ग्रुप के हैं आप आ सकते हो, आप सोलो हैं, डुएट हैं और ट्रायोज हैं, आप ग्रुप में आ सकते हो, और ग्रुप के भी कोई फिक्स नंबर्स नहीं है। अगर आप 4 के ग्रुप में आए, 20 के ग्रुप में, सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स। आई थिंक वन हैज़ टू लुक फॉरवर्ड टू दिस शो, क्योंकि आई थिंक ऐसा कॉन्सेप्ट आपने पहले नहीं देखा। एक्चुअली व्हाट यू वांट टू से, हिंदी सीखनी पड़ रही है आपको, कितना डिफिकल्ट हो रहा है ना? डिफिकल्ट नहीं है, मज़ा है। आई थिंक इट्स ऑल फन, आई एम एंजॉइंग इट, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि आई हैव ग्रेट पीपल लाइक रितेश एंड गीता विद मी, वेरी हेल्पफुल एंड वेरी सपोर्टिव, और दोनों की बहुत एक्सपीरियंस है, तो आई एम लर्निंग अ लॉट। अच्छा, व्हाट इज मोर एंजॉयबल, कोरियोग्राफिंग और लर्निंग हिंदी? आई थिंक बोथ, आई थिंक आई एम कोरियोग्राफिंग हिंदी राइट नाउ, क्योंकि हर सेंटेंस के पहले मेरे को कोरियोग्राफ करना पड़ेगा। ऐसे आपका भी फर्स्ट टाइम जजिंग कर रहे हैं आप, सो क्या गीता माँ से बहुत टिप्स,
गीता माँ मेरे सीनियर गुरु है इस एरिया में, तो मैं जो कुछ मैं बोल रहा हूँ गीता माँ लिख के बोलती है ऐसे 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 हिंदी में, क्योंकि मैं आई स्पीक इन इंग्लिश, सो शी एक्सप्लेन्स इट इन हिंदी. न्यू लाइन, लर्न दिस लाइन नाउ. So she's my teacher. Tell them everything. Better not. She teaches me line by line. Any other questions, guys? Okay, Ritesh, आपका जो आज आउटफिट है, I'm sorry. Okay, आज आपका जो आउटफिट है काफी स्टाइलिश है, no doubt. So आप क्या स्टाइल पर ज्यादा फोकस करेंगे या फिर डांस पर? मुझे जो कपड़े मिले वो पहन के आया हूँ. आपको अच्छा लगा तो अच्छी बात है. थैंक यू. Okay, thank you guys. थैंक यू.